Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel that is Ideal Other Science. Friends, as we know that we have started the NCERT summary series class 9th science. Which book you are looking in front of you, that is NCERT science book class 9th, which is based on NCERT. Friends, at last three video we have completed three chapter of this book, and first chapter name was matter in our surrounding, and second chapter name was is matter around us pure, and third chapter name was atoms and molecules. And today we will read the summary of the chapter number 4, and that chapter name is structure of the atom. Friends, without wasting our time, let's go on the chapter 4 and try to read and understand the summary of this chapter. And here is, you are looking guys, here is chapter number 4, that's name is structure of the atom. It means परमाणु की संरचना. Friends, let's go on summary of this chapter. As we know that friends, in every chapter we are looking the summary, and summary of the chapter is given just like what you have learned. It means आपने क्या सीखा, आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखा वो आपको यहाँ पर दिया गया है. Now start to read it first line and try to understand in Hindi and try to read in English. Let's start it. First line is given here. Credit for the discovery of electron and proton goes to J.J. Thomson and E. Goldstein respectively. And what will be the Hindi meaning of this line? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने किया था. एंड सेकंड लाइन इज गिवन हेयर इन इंग्लिश, दैट इज जे थॉमसन proposed दैट इलेक्ट्रॉन्स आर embedded इन पॉजिटिव स्फीयर. एंड व्हाट विल द हिंदी, एंड व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ दिस लाइन? दैट इज जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसा हुआ होता है, यानी embedded होता है एक पॉजिटिव स्फीयर में. एंड फ्रेंड्स, नाउ गो ऑन द नेक्स्ट लाइन. Friends, as we looking here, NCERT is giving one liner as a summary and as a what you have learned in last of the every chapter. And third line is given here of this chapter. Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the discovery of the atomic nucleus. And what will be the Hindi of this line, and what we understand the line in Hindi? That will be guys, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी. किसकी खोज की थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज, डिस्कवरी की थी. किसने की थी? रदरफोर्ड ने. एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइन, एंड व्हाट नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड Hindi in English, both language. And here is written, Rutherford's model of the atom proposed that a very teeny nucleus is present inside the atom and electrons revolve around this nucleus. The stability of the atom could not be explained by this model. And now you have read this line and now understand in Hindi. And what will be the Hindi of this line is, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस. एंड आफ्टर दैट, परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती. एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. एंड नेक्स्ट लाइन इज गिवन हेयर, नील्स बोर्स मॉडल ऑफ द एटम वाज मोर सक्सेसफुल. नील्स बोर्स का जो एटम का मॉडल था वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, अधिक सफल था. उसके बाद ही proposed दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स विथ डिस्क्रिएट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस. इफ द एटमिक सेल्स आर कंप्लीट देन द एटम विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. एंड व्हाट विल द हिंदी ऑफ दिस लाइन इज, उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर और निश्चित ऊर्जा के साथ जाती है तो परमाणु स्थिर होगा. उन्होंने here is written, he proposed that electrons are distributed in different cells with discrete energy around the nucleus. It means उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होती है, अलग अलग कक्षाओं में वितरित होगी, यानी डिफरेंट सेल्स में वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड इफ द एटॉमिक सेल्स आर कंप्लीट देन द एटम विल बी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा. And next line is given here, and what is written, J. Chadwick discovered presence of neutrons in the nucleus of an atom. So the three subatomic particles of an atom are, first is electrons, second protons, and third is neutrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons have no charge. And what will be the Hindi, and what we have understand this line in Hindi? जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था. जे चैडविक डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वहाँ जो थे तीन अब परमाणु कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज. प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो चार्ज विहीन होता है, यानी उस पर चार्ज नहीं होता है. उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है, हियर इज रिटन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
यहाँ लिखा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। द मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। एंड व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। यही हमारे इस लाइन के द्वारा समझाया गया, 1 यूनिट ईच it means। and what is given in next line, try to read it। cells of an atom are designed as KLMN। जो एटम के जो डिजाइन किया गया उसके सेल्स को कोष को वो KLMN के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे हम 1 2 3 4 के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इज गिवन हेयर, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। संयोजकता जो वैलेंसी उसकी परमाणु की संयोजन शक्ति है। नेक्स्ट लाइन इज गिवन हेयर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एंड व्हाट विल बी द हिंदी, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एंड नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। एंड व्हाट विल बी द हिंदी, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। उसमें जो न्यूक्लियंस होते हैं उसकी संख्या के बराबर होती है। एंड व्हाट इज रिटन इन नेक्स्ट लाइन, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स जो होते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उनकी जो द्रव्यमान संख्या होगी मास जो होगा उनका मास नंबर्स वो डिफरेंट होगा। एंड नेक्स्ट इज रिटन हियर, आइसोबार्स। आइसोबार्स आर एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एंड व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ दिस लाइन इज, संभारिक वे परमाणु हैं। यहाँ समस्थानिक के बारे में दिया था, यहाँ संभारिक, यहाँ आइसोटॉप्स और यहाँ आइसोबार्स। अब आइसोबार्स यानी संभारिक, संभारिक वे परमाणु है जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर उसका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन इज गिवन हियर ऑफ दिस चैप्टर समरी, What is written, elements are defined by the number of protons they possess। It means तत्वों के उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं एलिमेंट्स उनको उनकी एटॉमिक संख्या के प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उस पर इसको परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीड आउट द ऑल summary lines of this chapter and we have understood in Hindi and English, and now we search some important point of this chapter. After that we will end this video, and if you are feeling this video is very helpful for your upcoming examination, our target is BPSC TRE 4.0, then you can like this video and share this video. If you want, subscribe this channel. Friends, here is written about J.J. Thomson. J.J. Thomson, we should read about J.J. Thomson. Here is written about J.J. Thomson. J.J. Thomson 1856 and 1940. It means इनका जो जीवन काल था वो 1856 में से शुरू हुआ और 1940 पर जाके खत्म हो गया। ये कौन थे? ए ब्रिटिश फिजिस्ट वाज born in Chatham Hills, a suburb of Manchester. On 18 December 1856, he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work of the discovery of electrons. इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किया था इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1906 में। And now is written here, he directed the Cavendish Laboratory and Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. And here was written about J.J. Thomson. At last chapter, if you remember, we have read out about John Dalton, and many more physicists are given here. Second is Rutherford. And what is written about Rutherford here? Try to read it. Here is written, this pen is Rutherford, and here is written about Rutherford. Rutherford 1871 से लेकर 1937 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। इनका जन्म वाज बॉर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। स्प्रिंग ग्रोव में इनका 30 अगस्त को 1871 ईस्वी में जन्म हुआ था। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर इनको जाना जाता है। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क एंड रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908। उन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था कब? 1908 में। एंड थर्ड एंड लास्ट physicist is given here, and what name of him is Niels Bohr. And Niels Bohr जीवन काल is between 1885 to 1962. Was born in Copenhagen 7 October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. इनको भी नोबेल प्राइज मिला था अपने काम के लिए जो इन्होंने काम किया। Among Professor Bohr's numerous writings
3 appearing as book are, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, इसका नाम था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इज एटॉमिक थ्योरी, and third is the description of nature, not description of nature. And now friends, we have read out three scientists, and now we have completed this chapter and summary of this chapter. And next video we will read out the chapter number 5, that's name is the fundamental units of life. Friends, if you are looking this, my hard work is good for you and it will be helpful for your upcoming examination BPSC TRE 4.0. You can subscribe my channel and like and share the videos. Thank you so much.